So can you share a bit about about your interview preparation? How are you proceeding so far? What is the progress? Sir, so I initially started with my hobbies because I was anyways a bit more comfortable with them. After that, I progressed to reading a bit about my state, which is UP, a bit about my city, which is Lucknow, especially the historical part of it. After, I have yet not started my optional, that is electrical engineering, and I have started with the current affairs part. I was reading a bit of international relations as well as a bit of economy. Okay, fine. And what is your expectation from us? Like, what do you think is lacking in your preparation? So, What kind of support you? yes, sir. So I would mainly like to get the expectation of what questions I can expect from my DAF. Uh, that would be the most important help that I can get from you. Apart from that, current affairs also, if there could be a list of expected topics, then it would be a great help. Right. So Aditya, are you located in Delhi or outside Delhi as of now? I'm currently in Patinagar, Delhi. Patinagar, Delhi. Fine. Yes, sir. Fine. I'm just reviewing your DAF. This is your first interview? Yes, sir. This is my first interview. Okay. Fine. So, have you prepared some register kind of thing for your preparation? Are you making some notes in some register? Yes, sir. Yes, sir. I'm making. Okay. So one thing that you can do, which I suggest to the students, like what you can do, you can make some small paper slips. Like what happens is, like what you can do is you can cut A4 sheet paper into the 4 parts, and then in each sheet you can write some question. Okay. So Okay. first objective that you must have is the questions. Create as many questions as possible without thinking that how will I get the answer or what will be the perfect answer. Don't think about the answer as of now. Just keep preparing questions, right? Yes, Then, like what you will do, you will prepare separate categories of slips, like one category for hobby, second category for optional, third category for state, fourth category for something else like that. And then what you will do, you will go in front of the mirror, pick up any slip randomly, and then start answering to that. Okay. And whatever point come to your mind, you can write behind that slip, okay, by pencil, by some kind of pencil, right? Aditya, I'm really sorry that there is some background noise you can hear. Actually, I'm at home, so my kid is creating a bit of disturbance. So sorry for that. Please No problem. manage. Okay, thank you for understanding. So actually क्या है कि दिन में तो ऑफिस में रहता हूँ मैं, तो ऑफिस में people are coming and meeting so many people. So online session I prefer in the evening so that I can concentrate fully. Otherwise, what happens in the office, it is not possible to concentrate fully. Yes, unless you are sitting in front of me one to one. Yes, I understand. So definitely the questions questions will be from your Lucknow, because you are from Lucknow. So Lucknow का पूरा history आपको अच्छे से पढ़ना होगा, right? And the problems, and it is a capital city also. So from the administration point of view, like state level का जो executive होता है, because it is a capital city, so state level executive जो होता है इसमें, for example, state ministries, right? Then all the constitutional bodies of state, article number, right? So because when you see the capital cities, and at times it comes to the mind कि चलो इसके बारे में बात करते हैं, like who is the speaker, who is the governor. So normally they will not ask other people, but they might ask you,
because there is a perception that you are there in the Lucknow. So sometimes what happens that interview board, they want to, just ask few things for their curiosity to, Okay. just out of curiosity. Okay. So, about Vidhan Parishad, the Legislative Council, uh, then important ministries, important departments, important government schemes, right? Okay. How this government is succeeding or failing, especially in the issues like law and order, because Uttar Pradesh, it is very notorious for the law and order, Yes. and there are some specific initiatives taken by the government in the Uttar Pradesh regarding law and order. For example, this Gangster Act, frequent usage of the Gangster Act, then this bulldozer image, like using the bulldozer on everything, Yes, sir. Right. right? So Even I think the Vikas Dubey case can be asked. Hello. Hello. that Hello. 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 I think you are on mute, sir. Aditya, just a minute. Yes, sir.
ये आदित्य। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। तो लाइक ये जो मैं क्लियर नहीं हूँ। जी सर। I'm audible? यस सर, यस सर, यू आर मैं ऑडिबल। आप भी सुन पा रहे हैं? जी जी ओके 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 या सो उत्तर प्रदेश के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर, बाई इलेक्शंस की बात कर रहे थे, बाई इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ओके। देन लाइक स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हाँ अभी सर, रिसेंटली हम लोग अभी जो सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसके बारे में भी आई थिंक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यस यस ओके। यस, तो स्टेट के बारे में ये होगा, और स्टेट के लिए आपका एक उत्कर्ष वाले यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं स्टेट स्पेसिफिक, दिल्ली में। उनका भी शायद कुछ दिनों में ऐड आएगा हिंदू में। उत्कर्ष के नाम से हैं, कानपुर से आकर के आते हैं वो स्पेसिफिकली। वैसे पीसीएस में स्पेशलिस्ट है वो, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट की वो प्रिपरेशन कराते हैं एक्चुअली। ओके। तो उनके कुछ सेशंस हैं, अगर टाइम मिलेगा तो वो आप अटेंड कर सकते हो। जी वो जी स्पेसिफिकली मतलब चीज का आपको देते हैं इस एरिया। और सेकेंडली जो आपका रीजन है, जैसे आपका अवध रीजन आता है ना लखनऊ, जी तो सर। उस रीजन के बारे में थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना आप। उसका डेवलपमेंटल स्टेटस और उसका सोशल इश्यूज क्या है वहाँ पर, और वहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी पॉइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, और हिस्टोरिकल भी। तो आपका जो अवध रीजन है स्पेसिफिकली, उसका आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ओके। इसके अलावा जो भी आपके कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी हैं, जैसे अयोध्या का इशू हो गया, राम मंदिर का इशू हो गया, उसमें भी आपकी ओपिनियन क्या होगी, न्यूट्रल ओपिनियन क्या होगी, ओके। कि मतलब थोड़ा सा उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके। क्योंकि उत्तर प्रदेश इज ए वेरी पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट, इम्पोर्टेंट स्टेट ऑल्सो। और इसके अलावा जो भी आपके इश्यूज हैं, जैसे आपके वाराणसी कॉरिडोर हो गया, और तो ये सब चीजें मतलब आप कर लेना, जो भी एसोसिएटेड इश्यूज हैं। ये ओके। आपका उत्तर प्रदेश के बारे में हो गया। जी सर। और हेलो। हेलो। लखनऊ के बारे में तो डेफिनेटली, लखनऊ की जो सिटी स्पेसिफिक में आपके मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन यस यस। आपका ऑप्शन क्या है आदित्य? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सर। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फाइन फाइन। कैसा आपका इस बार मेंस मेंस कैसा था? तो जीएस जीएस एंड वैसे तो आई वुड से वाज गुड। इलेक्ट्रिकल में सर दो पेपर होते हैं, तो सेकंड वाला पेपर मेरे को लग रहा है मैं अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कर पाया। पहले वाले पेपर में मेरे को लग रहा है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस से मैं 10-15 नंबर एटलीस्ट कम कर पाया। तो वही बस थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा मेरे को पेपर वाला। मार्क्स कैसे आ रहे हैं अभी इसमें रिसेंट ईयर्स में सर ये इलेक्ट्रिकल मेरा इंजीनियरिंग में? अच्छा, ओवरऑल ओवरऑल सर 320 तक तो मैंने सुना है हाईएस्ट। 300 के ओके आसपास भी लोग दिखते हैं, 290-300 के बीच लोग दिख जाते हैं काफी। ओके ओके, वेरी गुड, अच्छा है फिर तो। जी देखिए आपको इंटरव्यू को इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका मेंस कैसा गया है। जी सर। क्योंकि जो मेंस जो इंटरव्यू का स्कोर है, ये इंडिपेंडेंट स्कोर है, इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रीवियस से। जी और एक चीज और है कि आपका जो इंटरव्यू का स्कोर है वो आपको रैंक दिला सकता है। हाँ, राइट सर। आपका कुछ भी मतलब अगर आपका मेंस क्लियर हुआ है, तो जस्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आप एटलीस्ट रैंक तो ला सकते हो। लाइक दिस इज बेयर मिनिमम, जी एक मतलब मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। तो इंटरव्यू को आपको सिंसियरली लेना है, और लास्ट मोमेंट तक आपको यू हैव टू एक्ट लाइक ए बिगिनर। yes, और आपका जो बात करने का तरीका है, टेम्परामेंट है, दैट आई कैन सी वेरी सिंसियर। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेंस पता नहीं मेरा कैसे क्लियर हो गया। काफी लोग इस स्टेट में होते हैं।
तो या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। कुछ को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का, कुछ को लगता है कि मेरे पास तो बहुत टाइम है यार, करना ही क्या है इंटरव्यू में। तो दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। सो आपको सिंसियरली प्रिपेयर करना है, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करना है। मतलब कोई भी चीज आपको लाइटली नहीं लेना है। लाइक लास्ट ईयर जो है मेरा एक स्टूडेंट था, प्रफुल्ल कुमार शर्मा, वो उनका 249 शायद रैंक था। अभी वो आईएएस है यूपी कैडर में। तो उन्होंने 300-400 पेज का पूरा इंटरव्यू का मतलब पूरा रजिस्टर प्रिपेयर किया था, पूरा ही कंप्लीट रजिस्टर प्रिपेयर किया था। ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। सो मतलब उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। आई थिंक 190 टू 200 के बीच में कुछ मार्क्स आए थे। एंड बहुत बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, कुछ स्पेशल बैकग्राउंड नहीं थी, कोई स्पेशल कोई पर्सनालिटी भी नहीं थी। पर्सनालिटी भी आप देखोगे तो इट विल बी लाइक जस्ट अनदर गाय। बट उनके जो आंसर्स थे दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सो आपको हर एस्पेक्ट में एक थॉट देना है प्रिपरेशन के लिए। और ये मान के चलिए कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो वो आंसर आपका आपके आंसर्स में दिखता है, वो प्रिपेयर्डनेस। और आपका जो मोर देन 90% इंटरव्यू है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड वे में जाता है। अच्छा। सो हाँ, सो आप जितना प्रिपेयर कर सकते हैं कीजिए, और मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कीजिए और इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस भी कीजिए जितना हो सकता है। सो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने किया था, उससे लास्ट ईयर भी किया था, एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे जस्ट, क्योंकि इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया था उससे पहले चल रहा था हमारा तकरीबन 1 मंथ के लिए। तो 15 टू 20 स्टूडेंट इसमें आते थे। लेकिन जैसे रिजल्ट आता है तो फिर वो ग्रुप डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं। जी सर। सो ग्रुप डिस्कशन वगैरह में आप कुछ रहिए, एक दो अपने अच्छे फ्रेंड्स बना लीजिए जिनसे आप सभी तरह के इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। जो भी कोई इशू आता है आप अपनी ओपिनियन डिस्कस कर सकते हैं, वो अपनी ओपिनियन डिस्कस कर सकते हैं। तो जितना डिस्कशन कर सकते हैं वो कीजिए। या देखिए, नॉलेज एक्वायर भी कीजिए और नॉलेज एक्सप्रेस भी कीजिए जितना हो सकता है। सो दिस इज ए जनरल एडवाइस। इसके अलावा आप लेटेस्ट टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो ऑन द फोन एंड यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। और सिमिलरली यू कैन मतलब हाँ, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी का मिरर का यूज कर सकते हैं। मिरर जो है, मिरर हेल्प्स यू आइडेंटिफाई योर बॉडी एक्सप्रेशंस, योर फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये है आपका जो, आई मीन जस्ट वन ऑब्जर्वेशन, हालांकि ये बहुत ही प्रीमेच्योर ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ मैं, कि थोड़ा सा आप प्लीजेंट वे में, मतलब आपके सिंसियरिटी इज गुड, लेकिन थोड़ा प्लीजेंट अपने आप को कीजिए, थोड़ा सा लाइटली स्माइल कीजिए। स्माइल। हाँ हाँ, हल्का सा स्माइलिंग रहिए, हाँ, क्रिएट ये ए सीरियस वाला काफी पॉजिटिविटी। बार मेरा हो जाता है, मैंने सुना है लोगों से। हाँ हाँ हाँ, सीरियस। मतलब वैसे एक अच्छी, ये जो सिंसियर वाला है ये अच्छा है। सिंसियर आपका नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है वो, बिकॉज यू आर वेरी हम्बल। तो लेकिन साथ में हल्का सा अगर आप यू यू विल स्माइल, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए। वो कहते हैं ना कि इफ यू कांट मेक इट देन फेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जी जी, राइट। तो ये जो स्माइल है ना, ये स्माइलिंग ये एक ऐसी चीज है ना कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। और कॉन्शियसली आप स्माइल कीजिए, विदाउट एनी रीजन स्माइल कीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि सामने वालों को गंदा लग रहा है तब भी स्माइल कीजिए। स्माइल इज लाइक ए वायरस। आप स्माइल करते हैं ना, सामने वाले को भी स्माइल आ जाती जी जी, राइट। है ना। तो ये एक आपके एनवायरनमेंट में बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, बहुत लाइटनेस क्रिएट करती है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई आंसर पसंद नहीं आया उनको, लेकिन आपने क्योंकि हल्की सी स्माइल मेंटेन की हुई है तो वो भी समझ जाते हैं कि ठीक है, मतलब बच्चा है, ठीक है, इट्स फाइन। सो सिग्निफिकेंस नहीं देना, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा। ओके, तो मैं आपको डेफ में, और जी आपके कॉलेज, आपका जो इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड भी आपको सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। हाँ। अभी आपका जो अभी है, आप सर लखनऊ के बारे में बता रहे थे कुछ कुछ, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी तक आपने बस बोला था, उसके बाद फिर आवाज कट गई थी ओके एक्चुअली। ओके, हाँ हाँ, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जी सर। जैसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम वहाँ पर है, ट्रैफिक हो गया, और अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, ओके। उनके कैसी उनकी स्टेटस है। और रिसेंट वाला आप बजट भी पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश का बजट जो है। अब तो फरवरी वाला जो ही आएगा सीधे, क्योंकि मेरा तो हाँ, 10 मार्च तक वाले में नहीं आया नाम। अच्छा आपका नाम नहीं आया अभी तक। जी जी, आज वाले में नाम नहीं था मेरा।
ओके, हाँ तो आप नया वाला पेज पढ़ लीजिएगा। यस। हम्म। और ठीक है, लखनऊ के बारे में मतलब एक अर्बन सिटी होने के नाते एक जी अर्बनाइजेशन वाली जो इशू है, अगर वो स्मार्ट सिटी है, आई थिंक स्मार्ट सिटी तो हो गई हाँ, लखनऊ, नेचुरली चल तो रहा उससे रिलेटेड भी कि सक्सेस फेलियर ऑफ स्मार्ट सिटी, कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी वजह से। और इसके अलावा कुछ और भी शायद कंट्रोवर्सी थी, मायावती ने पार्क बनवाई थी लखनऊ में, है ना, कुछ था शायद, नोएडा में थे या लखनऊ में थे, नोएडा में तो थी, है। सर वो लखनऊ में पता हाथी नहीं। वाले जो पार्क था, हाथी के बना दिए थे स्टैचूज खूब सारे, फिर उनको बाद में कवर करवाया गया था इलेक्शन के टाइम पे। हाँ लखनऊ में थे ना वो, जी सर। लखनऊ में, हाँ लखनऊ में वो वाला भी देख लीजिएगा। और हाँ ठीक है, यही इश्यूज हैं। ओके हम्म। सर, आप तो लखनऊ से हैं या फिर आप इधर ही दिल्ली से? मैं गाजियाबाद से हूँ, अच्छा अच्छा। गाजियाबाद मेरठ। हाँ तो उत्तर प्रदेश मेरा भी होम स्टेट, मतलब मैंने प्रिपेयर किया था। ओके ओके हाँ, आई अपेयर्ड थ्राइस इन द इंटरव्यू। ओके ओके। ठीक है सर। ओके, अब आपने कहा कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज के बारे में हाँ। क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके अनुसार? हम्म। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपके लिए करूंगा। हमारी एक स्पेशलिस्ट फैकल्टी है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, सो आई विल आस्क हिम कि आपके जो एरिया है उससे संबंधित आपको कुछ इनपुट्स दे सकते हैं, तो हिस्ट्री ओके। एंड हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल। जी क्योंकि जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है ना, तो इंटरव्यू दो डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन में जाता है, कभी कभी ना वो optional वाली चीजें ज्यादा पूछते थे टेक्निकल, जी। वो आपको देखने हैं एज एन आईएएस ऑफिसर। अगर वो आपको कंसिडर कर रहे हैं कि आप आईएएस, आईएएस के लायक हैं, एलिजिबल हैं, जी तो डेफिनेटली फिर वो आपसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की ज्योग्राफी, ये चेक करने के लिए कि कहीं आप सिर्फ टेक्निकली तो नहीं रह गए हो। तो जो आपके जो ह्यूमैनिटीज वाले डायमेंशंस हैं, सोशल डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, जी। उसको थोड़ा कॉन्फिडेंटली आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके। उस उसको आपको उसकी टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी होगी, उसके कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स यूज करने होंगे। तो आपको थोड़ा टेक्निकल से बाहर जाकर के उनको शो करना होगा कि यस, आई एम नॉट जस्ट एन इंजीनियर, बट आई कैन ऑल्सो बिकम ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके तो आपको मतलब इश्यूज के अंदर एक जेन्युइन इंटरेस्ट लेना होगा। ओके। हाँ, इश्यूज के अंदर जस्ट क्या जस्ट बोलते हैं? इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट। ओके जी। जस्ट 30 seconds, आई नीड टू जस्ट रिसीव ए कॉल। श्योर सर। हम्म। जी सर। तो ये हो गया आपका। और बाकी आप अपने नाम से संबंधित जो भी हैं, सन, सोलार सिस्टम, आदित्य मीन्स सन होता है ना, जी सन। जी राइट सर। तो रिलीजियस एस्पेक्ट से भी क्या इंपॉर्टेंस है सन की, और अदरवाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ और ज्योग्राफिकली भी ऑल्सो, सोलार सिस्टम, यूनिवर्स वाला चैप्टर आपको अच्छे से थोड़ा कर लेना आप। जी। सोलर सिस्टम ओके। और आदित्य के नाम से कौन फेमस पर्सनैलिटीज हैं आज के समय में? हाँ सर, वो भी देखना होगा। मतलब किस किस डोमेन में देख लें, जैसे साइंटिस्ट हो सकता है या फिर सेलिब्रिटीज में तो एक्टर ही हो सकते हैं, क्रिकेटर तो नहीं है गूगल, सेलिब्रिटी। हाँ, गूगल इज द बेस्ट सोर्स। ओके। जैसे आदित्य ठाकरे है शायद, है ना, आदित्य ठाकरे एक तो हो गए जी जी महाराष्ट्र में जो है, जी जी। तो ओके, फिर आप वहां से उनका नाम भी मतलब ले सकते हैं, वहां वहां से से भी क्वेश्चन। हाँ हाँ। वहां से तो फिर इसका मतलब महाराष्ट्र के अगर कुछ करंट अफेयर चल रहे होंगे तो वहां पर भी जा सकता है सवाल, हाँ, ठाकरे महाराष्ट्र के आगे। इश्यूज, हाँ महाराष्ट्र के जो बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे आपका ये जो गवर्नमेंट चेंज हो रहा है जी ना, शिवसेना वाला इशू भी आ सकता है। मतलब देखिए, ये सब प्रिपेयर करने से फायदा क्या होता है कि आप जब बोलोगे तो आप डरोगे नहीं, हाँ मतलब। और सेकेंडली ये है कि आपको पता है कि हाँ, अब इस डायरेक्शन में इंटरव्यू जा रहा है, तो आप प्रिपेयर्ड हो उस डायरेक्शन में ऑलरेडी। जी जी। और इसके अलावा ही इज ए यंग पॉलिटिशियन,
तो यूथ एंड पॉलिटिक्स, और आपका फैमिली, जो मतलब दिस nepotism, because somewhere he is also representing nepotism. So is it the reality in India? Is it right or wrong? जैसे एक बड़ा इशू बनता है, जो अभी रूलिंग पार्टी है वो एक बड़ा इशू बनाती है नेपोटिज्म को, तो क्या ये मतलब इज इट ए पॉलिटिकल स्टंट, या रियलिटी में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसमें है कि नहीं है, क्या है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इज इट गुड, बैड? आपके अनुसार इसमें क्या बोलना चाहिए नेपोटिज्म के बारे में? क्योंकि जैसे नेपोटिज्म को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते हो, तो फैक्चुअली गलत हो जाएगा। हाँ देखिए, नेपोटिज्म में जो है, नेपोटिज्म इन इटसेल्फ इज नॉट बैड, क्योंकि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस करता है तो वो भी नेपोटिज्म है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स जो है दैट्स ए पब्लिक सर्विस, दैट्स पार्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस। सो वहां पे देयर शुड बी सम दैट, जो आपका जो पॉलिटिशियन है दैट शुड कम फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। उनको पहले ग्राउंड लेवल का एक एक्सपोजर देना चाहिए। दे शुड बी मेड द वर्कर, और व्हेन ओनली दे आर सिलेक्टेड बाय द people, they are elected by the people of the party, then only they should become the top person. Okay. हाँ, like they should not be directly made head of the party or something. Okay. और उसके कुछ एग्जांपल भी आपको बताने पड़ेंगे कि ऐसा है क्या इंडिया में, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं। पंकज सिंह है, एक नीरज सिंह है यूपी में। तो लाइक दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और अभी भी वो एमएलए हैं, अभी मिनिस्टर्स भी नहीं, उनको नहीं बनाया उनको। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टी में ऐसा है कि नेपोटिज्म को ओपनली नहीं किया जा रहा है अभी जो एग्जिस्टिंग बीजेपी में है। और कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, जैसे अनुराग ठाकुर का हो गया, जो मतलब कहीं ना कहीं उनके जो फादर हैं उनकी वजह से यहाँ पे आए हैं वो, है ना। तो थोड़ा सा इसको आप से भी एक बार एनालाइज कर लेना, और किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से या किसी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट से इस चीज को आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है। ओके ठीक है जी सर। मतलब नेपोटिज्म इन इटसेल्फ इज नॉट बैड, बट उसको प्रॉपर एक्सपोजर देने के बाद में तब उसको हमें कुछ उसका एडवांटेज देना चाहिए, जो भी है उसका। मतलब बाकी ये पॉइंट तो बोल ही सकते हैं कि जनता ने सिलेक्ट कर लिया तो फिर जनता से बड़ी आवाज किसकी है, ये पॉइंट। हाँ, फाइनली तो अगर एब्सोल्युटली फाइनली अगर उनको सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसको हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो अभी एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी आई है, उसके बारे में थोड़ा आप स्टडी कर लेना। ओके। क्योंकि उसके अंदर भी एक ऑप्शनल है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। हाँ राइट सर। तो उसका फॉर्मेशन, उसका जो है कि मर्जिंग ऑफ द रेलवे सर्विसेज इज ओके और नॉट, उसका थोड़ा स्टडी, आप हिस्ट्री स्टडी कर लेना कि ये मर्ज क्यों की गई है, कौन कौन सी सर्विस मर्ज की गई है, और अगर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आती है तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं मर्ज होने के बाद में, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना। जी सर। अच्छा सर, इसमें एक डाउट मेरा और ये भी था कि जैसे इलेक्ट्रिकल में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो पावर वाली साइड का और एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड का। इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन, दूसरी तरफ पावर। अब जैसे मेरे डैप में अगर आप अचीवमेंट्स वाले में देखेंगे तो एक मेरा रिसर्च पेपर है जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन की साइड है, और एक मेरा प्राइज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड है। तो क्या मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पावर की साइड कम रुझान रहेगा बोर्ड का और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की साइड ज्यादा? देखिए, हम कुछ नहीं बोल सकते कि रुझान कहाँ चला जाए, तो आप दोनों तरह से ही प्रिपेयर कीजिए। ओके। रिसर्च पेपर इन एमर्जिंग वीआर टेक, वीआर टेक मींस वर्चुअल रियलिटी ना। जी सर। वर्चुअल रियलिटी ये मेरे को बैच पूरा लिख देना चाहिए था क्या, लेकिन अब तो खैर कुछ कर नहीं सकते। वीआर लिख करके लगा कि पता नहीं वहां पर क्या देंगे वो। एनटीएससी स्कॉलर, एनटीएससी मींस नेशनल टेक्निकल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओके, इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। केवीपीवाई स्कॉलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बैच गोल्ड मेडलिस्ट। पावर सेक्टर का थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। पावर सेक्टर के लिए स्पेशली आप दो चीजें रेफर कर लेना, पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट जी। उसमें जो भी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं अच्छे से, उनकी एनुअल रिपोर्ट देख लेना। पावर सेक्टर में एक्चुअली मैंने काम किया हुआ है एनटीपीसी में, आई वर्क देयर, तो मैंने खुद अपने लिए प्रिपेयर किया था। बट काफी टाइम हो गया तो अभी जो है काफी कुछ चेंज हो गया है।
तो पावर मिनिस्ट्री की जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है, आई थिंक ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये पावर सेक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कैसे है ये? हाँ, जी जी पावर बिल्कुल सेक्टर में तो वैसे होता ही ही। है। जी जी। हाँ, पावर तो पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन ये सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो पावर सेक्टर तो फिर आपसे बहुत एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल। तो आप पावर मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट आती है वहां से आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेना। और अगर आप चाहो तो अगर हम देखें एनटीपीसी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी देख सकते हो आप, क्योंकि वहां पर भी जो है ना काफी कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करके वो कुछ स्टैटिस्टिक्स दे देते हैं। ओके। मतलब जरूरी नहीं है पावर सेक्टर तक लिमिटेड है, वैसे ठीक है, वो पावर सेक्टर तक भी ठीक है। ओके। और हम्म, एनुअल रिपोर्ट ठीक रहेगा। और नीति आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ लेना, जो नीति आयोग ने पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो सजेशंस दिए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आया था अभी रिसेंटली 2-3 महीने जी जी पहले, बिल चेंज हुआ था, जी। उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या चेंजेस उसमें हुए हैं। हम्म, ओके सर। आप आईआईएम रोड, ये आईआईएम लखनऊ है ना? जी जी सर, उसके बगल में ही है कॉलोनी। आईएम लखनऊ के बारे में भी कुछ प्रिपेयर करना चाहिए क्या? थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब क्योंकि आप आईआईटी से भी आते हो और आईआईएम का नाम भी इसमें आ गया, तो यू नेवर नो कि उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ जाए आईआईटी आईएम के बारे में। जो एक हाँ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि आप जो है आईआईटी से भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आईआईटी वालों को यूपीएससी में आना चाहिए? क्या फायदा होगा आपके आने से यहाँ पे? आपको अगर यूपीएससी करना था तो आप आईआईटी में क्यों आए? हाँ ये सब चीजें, ये तो डेफिनेटली आपको तैयार करना ही चाहिए। हाँ। इसमें एक और चीज भी नहीं दी हुई है, डैफ वन में थी मेरी जॉब भी थी 15 महीने की गोल्डमैन सैक्स में। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में। ऑर्डिनेंस, सॉरी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब थी? गोल्डमैन सैक्स अमेरिका का बैंक है। ओके ओके, हाँ हाँ, राइट राइट। जी। हाँ बिल्कुल, जॉब के बारे में आप कब, जॉब कब थी आपकी, मतलब कब, किस ड्यूरेशन में थी? 2019 के जून से लेकर के 2020 के सितंबर तक। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्या प्रोफाइल था आपका वहाँ पर? डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट, तो ये डेटा एनालिस्ट में क्या काम था एग्जैक्टली आपका? सर मॉडलिंग का काम था, डेटा मॉडलिंग ये सबका। जैसे मैं कंज्यूमर बैंकिंग सेक्टर में था, मार्कस नाम का कंज्यूमर बैंकिंग सेक्टर है उसका, उसके अंदर था। तो उसमें जैसे डिपॉजिट्स तो मेरे को असाइन किया गया था। तो डिपॉजिट्स की सारी मॉडलिंग, उनका जो भी पीएनएल ये सब होता है वो। उसके अलावा एक टर्म स्ट्रक्चर मॉडल पे मैंने काम किया था, वो मेरा प्रोजेक्ट था कि किस तरह से फ्यूचर प्रोजेक्शन की किस तरह से रोल आउट होगा जो डिपॉजिट है, मतलब किस तरह से विड्रॉ किए जाएंगे डिपॉजिट्स एक तरह से। तो तो ये ये आपकी बेसिक। प्रोफाइल से कैसे रिलेट कर रहा है, मतलब क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और ये जो वर्क है ये थोड़ा एक्सेल टाइप का वर्क है। सर ये तो एक्चुअली पूरा कोडिंग टाइप का था, मतलब पाइथन पे काम करते थे। और अच्छा अच्छा, मैंने इसमें डाला नहीं है, मेरा माइनर डिग्री था मशीन लर्निंग एंड एप्लीकेशंस में। तो वहां से इन्होंने रिलेट करके मेरे को उठाया था। ओके ओके इसमें नहीं डाला क्योंकि मशीन लर्निंग प्रिपेयर करना मुश्किल काम हो जाता है। ओके ओके, फाइन फाइन। लेकिन थोड़ा कर लीजिएगा फिर भी प्रिपेयर, ओके। मतलब बहुत डिटेल में नहीं जा करके, क्योंकि जैसे लिंक मैंने, क्योंकि मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आया ना कि आप वहां पे कैसे पहुंच गए, तो वो आप आपसे पूछ सकते हैं इस चीज को। तो आपके अनुसार जॉब प्रोफाइल से किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जॉब प्रोफाइल से कंपनी के बारे में, जिस कंपनी जो कंपनी जो है जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री के बारे में। और ओके। इसके अलावा जैसे ये गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, और एक बैंक भी है, ये इम्पोर्टेंट बैंक है, तो इसके बारे में। इसके अलावा रिसेंटली आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वर्ल्ड वाइड, जी। जैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है अभी, पोस्ट कोविड सिनेरियो है, तो फिर आपका गोल्डमैन सैक्स आपका प्रोफाइल में है तो फिर वो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी जाएगा, क्योंकि ग्लोबल गोल्डमैन सैक्स इज ए इम्पोर्टेंट ग्लोबल कंपनी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। जी जी। तो डेफिनेटली आ सकता है। तो ओके। आप उस तरह से प्रिपेयर करना होगा आपको, गोल्डमैन सैक्स के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मैंने जो एग्जैक्टली काम किया वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो भूल भी रहा हूँ मैं। मेजर मेजर मेरे को याद है, लेकिन थोड़ा हाँ, थोड़ा भूल भी रहा हूँ मैं।
तो काम बस जितना किया है आपने, जितना आप बताओगे उतना ही है, क्योंकि वो तो स्पेसिफिकली आप ही को पता है। जी जी। क्वेश्चंस जो वो पूछेंगे उस काम में, जैसे उस काम में कुछ वो ढूंढेंगे कि वो काम वो कैसे रिलेट कर सकते हैं, वहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आप ही बताओगे। जो कुछ वर्ड आप यूज करोगे उन्हीं वर्डों हाँ। में से वो आपसे पूछेंगे वो। जैसे ओके। अगर आपने मशीन लर्निंग से लिंक कर दिया तो मशीन लर्निंग पे आ जाएंगे वो। मगर अगर आपने ऐसे ही बता दिया कि मैंने इस तरह से मॉडलिंग की थी, ये किया था, वो किया था, तो वो उसी के बारे में पूछ के फिर वापस आ जाएंगे वहां से। तो ओके। क्योंकि वो उस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं जो उनको भी आता है। हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ, तो अगर वहां पे कोई आपके बैकग्राउंड का पर्सन मिल जाएगा तो ही वो काफी डिटेल में जा सकता है। अदरवाइज आपका बहुत बड़ा पीरियड भी नहीं है, और बहुत ज्यादा ये इस तरह की कोई कोर प्रोफाइल भी नहीं है, जो जितना हाँ मुझे लगता है। थोड़ा एक नया टाइप का वर्क है, कोई हाँ वैसे हाँ, रेगुलर वर्क नहीं है। जी हाँ, जी। तो कंपनी के बारे में ज्यादा सवाल पूछते हैं नॉर्मली जॉब में, या फिर आपकी कोई प्रोफाइल ऐसी हो। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप पब्लिक फील्ड में हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट है, उमेश गोयल। अभी वो आईपीएस है, 390 360 समथिंग रैंक है उनकी। तो ओके ही वाज ए बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ओके इन ओके। पंजाब। हाँ हाँ। तो अब उनकी प्रोफाइल तो होगी एडमिनिस्ट्रेशन वाली पूरी। तो उनसे जो है ना बीडीओ हाँ। वाले क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, कि बीडीओ प्रोफाइल में अच्छा। क्या आपने चैलेंज फेस किया, आप कैसे पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करते हो, कैसे आप मैनेज करते हो सब चीजों को। तो आपकी प्रोफाइल वैसी नहीं है पब्लिक फील्ड वाली, तो हाँ। आपसे जॉब वाले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो बहुत ज्यादा है, जब तक कि आप कोई कोई ऐसा वर्ड यूज ना करें जिस वर्ड से वो फर्दर आगे ना चले जाएं। ओके ओके। या तो देखिए एट मैक्स सिंपल ये बात। पूछ सकते हैं शायद। जी। कि इस सॉरी। चीज जो आपने काम किया उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज करोगे, मैक्सिमम मेरे को लग रहा है यहीं तक जा हाँ, सकता है। यस 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 यस। हाँ, आप आप काम किया, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी स्टडीज है, जी। मतलब आपने जो आईआईटी में सीखा, उसको आप कैसे हेल्प, उससे आपने क्या सीखा आईआईटी में, आपने क्या सीखा कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज, बट हाँ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मे बी टीम वर्क आपने कुछ किया हो, या वहाँ की कल्चर से आपने कुछ सीखा हो, या हाँ। एज ए आईआईटी ग्रेजुएट आपको कुछ स्पेशल ऐसी आपकी क्वालिटी डेवलप हुई हो, जो आपको लगा हो कि हाँ आईआईटी में जाने की वजह से मेरी क्वालिटी डेवलप हुई है। तो उस तरह की चीजें, मतलब उस चीजों पे ओके आप फोकस कीजिए। ओके ओके। ठीक है सर। तो आपके पास में भी तो टाइम है, इट इज मोर देन 2.5 मंथ है ना। जी जी किस राइट। डेट तक की लिस्ट आई है आज, किस डेट तक की लिस्ट आई है? 10 मार्च तक की। 10 मार्च तक, ठीक है। ठीक है, तो आप स्लोली 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 प्रिपेयर कीजिए, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, और सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो बनाते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए, डिस्कशन करके, पूछ करके, खुद के सोच करके, थोड़ा रिसर्च करके। ओके सर, अगर आपके पास 5 मिनट और हो तो एक बार हॉबी पे ही बता देंगे कि आप क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट, मतलब आपके दिमाग में क्या आता है ये हॉबी पढ़ के, क्या हम्म, क्या सवाल आते हैं। श्योर श्योर, आई विल डेफिनेटली। कि हॉबी थोड़ी सी अजीब है, यूनिक है, तो इसलिए। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है। रिसर्च पेपर इन एमर्जिंग वीआर टेक्नोलॉजी। तो वीआर टेक्नोलॉजी का यूज, और अगर कोई इसका एथिकल इश्यूज हैं विच आई एम नॉट अवेयर, वो पूछ सकते हैं। इसका यूज, इसको कैसे हम मास लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बेनिफिट हो सकता है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, जी सर। क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया में, क्या क्या स्ट्रेंथ है इंडिया की, स्वोट एनालिसिस इंडिया का, कौन ओके सी कंट्री में इसकी रिसर्च काफी अच्छी है, और हम क्या कर सकते हैं, किस कंट्री से हम इसमें एडवांटेज ले सकते हैं, किस कंट्री से सीख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, कौन कौन सी कंपनीज है जो उस पर वर्क कर रही हैं वीआर में। ओके। तो वर्चुअल रियलिटी, जो हम ये 3D मूवी देखते हैं, इज इट वर्चुअल रियलिटी? नहीं सर, इसमें वो जो नहीं आता है, हेडसेट टाइप का आता है, आंखों और कान को कवर कर लेता है ऊपर से और फिर एक तरह से इमर्स कर देता है, वो चीज होती है हाँ हाँ वर्चुअल हाँ रियलिटी। हाँ हाँ, मैं ओके, आई गॉट इट। जैसे कुछ ये ओशियन की वो कराते हैं, ओशियन डाइविंग हाँ मतलब टाइप का करा आजकल देते गेमिंग में काफी ज्यादा वैसे चल रहा है वीआर का, कि हैं वो बस गेमिंग में। हेडसेट पहन अच्छा, लो, तलवार और पकड़ लो, वहीं पर मारते हुए हाँ हाँ चले जाओ। हाँ, राइट राइट, हाँ हाँ हाँ।
जी राइट राइट। तो इसकी एप्लीकेशन आप देखिएगा कि इसकी एप्लीकेशन हम किस फील्ड में कर सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से देखिएगा, सर्च कीजिएगा कि एजुकेशन में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, हेल्थ में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ओके और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं इसको। ओके अगर कुछ पॉसिबल है, जो हमारी क्रिटिकल इश्यूज हैं जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, हाँ वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। सर, एक तो मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को स्टिमुलेट करके हम लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं वीआर टेक के थ्रू, तो ये कितना अच्छा पॉइंट एब्सोल्युटली, होगा। यस, ओके बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट। मेरे दिमाग में एक भी point और भी कुछ आया था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी हम इसको डील कर सकते हैं, मे बी मेंटल हेल्थ में भी इसको यूज कर ओके सकते हैं, ठीक है सर। क्योंकि इससे तो हम किसी तरह का वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ एजुकेशन में भी बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन में जी सर। स्टूडेंट को विजुलाइज करा सकते हैं रियल वर्ल्ड। इसका मेटावर्स से कुछ लिंक है क्या, जी मेटावर्स। सर, पूरा लिंक है, पूरा लिंक है, मेटावर्स का एक पार्ट है एक तरह से वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, ओके, मेटावर्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वीआर क्या। जी सर, एक तरह से मान सकते हैं कि जब तक कोई और टेक्नोलॉजी नहीं आती तब तक मेटावर्स को एक्सेस करने का यही तरीका है, ओके 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 अगर आप ओके, रियल में फाइन देखते फाइन, हैं। फिर तो मेटावर्स आप पूरा जाएगा, फिर तो डेफिनेटली मेटावर्स को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप। जी सर। वैसे भी आपने रिसर्च पेपर लिखा है, तो फिर आपसे रिसर्च में आपने क्या लिखा है। हाँ हाँ हाँ। तो दे विल बी क्यूरियस टू नो कि क्या आपने क्या रिसर्च की है इसके बारे में। ओके तो सर। मेटावर्स, इट कैन चेंज द वर्ल्ड। जैसे हम लोग पहले 20 साल पहले बोलते थे कि इंटरनेट क्या कर सकता है, आज हम देख पा रहे हैं इंटरनेट, मतलब आप दिल्ली में बैठे हुए हो, मैं बाहर बैठा हुआ, तो हम बात कर पा रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। जी 20 साल सर। पहले नहीं सोच सकते थे हम ऐसा। 20 हाँ साल पहले तो सिर्फ फोन थे बस। हाँ तो मेटावर्स ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं अगले 10 साल में, अगले 20 साल में, हम कुछ विजुअलाइज करा सकते हो उनको आप, जो पहले से कभी ना सोचा उन्होंने। मतलब कुछ इस तरह की चीजें उनको बता सकते हो कि उनको रियली लगे कि हाँ मजा आ गया मतलब बात करके आपसे। देखो, इंटरव्यू इट इज ऑल अबाउट गिविंग द गुड एक्सपीरियंस टू देम। ओके। उनको जितना अच्छा एक्सपीरियंस दोगे आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे, जितना उनको अच्छा फीलिंग आएगा, जी सर। उतना ही आपको चांसेस है कि हाई आपको अच्छा हाई मार्क्स मिलेंगे। ओके ठीक है सर। इसके अलावा सर, बैच गोल्ड। हाँ हाँ। नहीं मतलब मेनली मैं आपसे हॉबी के बारे में जानना चाह रहा था कि डायनासोर वाली और जो रिलेशनशिप वाली दो हॉबीज लिखी हैं उनके विषय में, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब और किसी की नहीं होंगी जहां तक मैं गेस कर सकता हूँ, इसलिए ये राइट राइट, होगा। ओके ओके, फाइन, आई गॉट इट, आई गॉट इट। जी सर। इवोल्यूशनरी साइंस बिहाइंड रिलेशनशिप डायनेमिक्स। जी सर। ये किसका, साइकोलॉजी का पार्ट है क्या ये। साइकोलॉजी में भी आ जाएगा, जैसे मैं क्या, मेरा अगर कोई पूछेगा कि क्या है ये चीज, तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं हमारे आसपास विद द ग्रोइंग इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द डाइल्यूशन ऑफ सोशल वैल्यूज, जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। जैसे हम लोग देखते भी हैं कि डेटिंग कल्चर ये सब आ रहा है, जबकि पहले पूरी तरह से अरेंज मैरिज वाला कल्चर था। तो आई लाइक टू स्टडी द एवोल्यूशनरी जेनेसिस ऑफ दीज इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज एज वेल एज द न्यूरोबायोलॉजी बिहाइंड द इमोशंस। तो इसमें आपने क्या स्टडीज की हैं। I mean, तो जैसे basically, I can discuss a bit about it because I am a teacher of organization behavior, which is ओके based upon psychology, anthropology, sociology. So वहाँ पे कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे एक सिगमंड फ्रेड की थ्योरी है, हाँ, एरिक्सन स्टेजेस थ्योरी, आपने पढ़ा है इन सबको। नहीं नहीं, मैंने बेसिकली रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उसके बारे में कि न्यूरोबायोलॉजी किस तरह से काम करती है उनकी, जैसे डॉन मास्लार करके हैं, उनकी एक बुक थी, तो वो पढ़ी है कि जैसे लव हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो जब हम इन चीजों में पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग के अंदर कौन से केमिकल्स किस तरह से फायर हो रहे होते हैं, तो वो चीज मैंने थोड़ी देखी थी। इसके अलावा फिर एवोल्यूशनरी रीजन, जैसे कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द राइजिंग डाइवोर्स रेट्स इन यूएसए, तो आर वी मोनोगेमस, इस तरह की चीजें। बेसिकली जैसे मेरा मेन ये रहता था कि यूएस की सोसाइटी में काफी हद तक चेंजेस आ रहे हैं और आ चुके हैं, तो उनके रीजंस ढूंढने की कोशिश करता था मैं, वहां से ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। ओके 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 ओके, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि वहां से आप सीख रहे हैं, और इट इज योर हॉबी, आप उसको जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो जी रहा है। जी सर। तो ये कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन है रिलेशनशिप डायनेमिक्स, या आपने लिखा है इसको खुद से, आई मीन आपने मैंने खुद से ऐसे ही लिखा लिखा है, ऐसा कुछ अलग से डिसिप्लिन नहीं है कि ये काफी सारी चीजों का मिश्रण बन जाएगा। जैसे आपने कहा है। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, डेफिनेटली
सोसाइटल कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप्स, लेकिन उसके अलावा हमारे इंस्टिंक्ट्स भी डिटरमाइन करते हैं। जैसे अट्रैक्शन हो गया, इसको सोसाइटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये प्योरली इंस्टिंक्टिव है। तो उन चीजों का मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने का कि एवोल्यूशनरी वाले जो पार्ट है उनके क्या रीजन है। राइट। इसमें आप क्योंकि आप वैसे इसमें आपको अपने आप को स्पेशलिस्ट की तरह तो आप मत बोलिएगा, क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट की तरह बोलेंगे तो फिर आपसे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे वो थ्योरीज एंड ऑल, यू नो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ऑल। तो आप इसको एक जर्नलिस्ट की तरह बोल सकते हैं कि मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं इसको पढ़ता हूँ सर, और उसके बारे में फिर आप बता सकते हैं। लेकिन आप एक दो थ्योरीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं। साइकोडायनेमिक थ्योरी लिख लीजिए, साइकोडायनेमिक और साइको एनालिसिस थ्योरीज। डायनामिक एंड साइको एनालिसिस थ्योरीज theories, given by Sigmund Freud, SIGMUND, Sigmund Freud, FREUD, Freud। ओके सर, ये और सोशियोलॉजिकल एक है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है एक्चुअली, ये Psychology। न्यूरो साइंस, यू नो। हाँ, ही वाज ए न्यूरोलॉजिस्ट। तो उसने बताया कि हमारा जो, यू नो, हमारा यू नो आईडी, ईगो, समथिंग, वो कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किए थे, और उनका एक कॉन्सेप्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, एक वो पढ़ लीजिएगा। और एक उन्हीं का है, एक है एरिक्सन स्टेजेस, ERIKSON, एरिक्सन स्टेजेस। ERIKSON, एरिक्सन स्टेजेस। साइकोसेक्सुअल ग्रोथ, सॉरी, साइको सोशल ग्रोथ स्टेजेस। साइको लिख लीजिए, साइको सोशल ग्रोथ स्टेजेस, एरिक्सन का। जी सर। साइको सोशल ग्रोथ स्टेजेस। सो ये क्या है ना, यहाँ पे लाइक जो एरिक्सन वाला है ना, ये आपको काफी हेल्प करेगा, यू नो। आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे ना, सिंपल इसके बारे में थोड़ा आप गूगल कीजिएगा थोड़ा सा, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट लॉट ऑफ थिंग्स इन रिलेशनशिप डायनेमिक्स। जैसे आपने बताया कि एक पार्टिकुलर टाइम पे लव होता है, तो उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि इस स्टेज में ये ज्यादा ऐसा होगा इसमें, यू नो, there is some kind of conflict between pleasure and reality. We are pleasure seeking person, so but reality में वो आसानी से मिलता नहीं है, तो then there is a conflict, उसका एंग्जाइटी होती है, उसको कैसे डील करते हैं, मल्टीपल टाइप के रेस्पॉन्सेज होते हैं, तो ये कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा मैस्लो की थ्योरी आपने देखा होगा, मैस्लो की थ्योरी तो पता ही होगा, नीड हायरार्की थ्योरी। नीड्स वाली, जो नीड्स वाला हाँ ट्रायंगल, हाँ पिरामिड हाँ, वाली। यस जी सर। यस। मतलब ये बेसिकली कुछ बेसिक थ्योरीज है जो एक्सपर्ट थ्योरीज नहीं है, मतलब बेसिक थ्योरीज है। मतलब अगर आप इस डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो, क्योंकि हॉबी में ना, व्हाट इज देयर पर्पस, हॉबी में उनका पर्पस होता है आपके डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट को जानना। ओके। आपके डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट को जानना, ठीक है, कि आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो आपका डेप्थ क्या है उसमें, है ना। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, मैं एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है ना, उसमें पर्सनैलिटी एक चैप्टर है, और ये जो यूपीएससी में कराते हैं ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। सो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यू नो, पर्सनैलिटी टेस्ट में वो क्या चेक करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट में वो कुछ ट्रेट्स चेक करते हैं कैंडिडेट्स में, ठीक है। तो आप एक थ्योरी और पढ़ सकते हो, बिग 5 डायमेंशंस थ्योरी। बिग 5 डायमेंशंस पर्सनैलिटी डायमेंशंस थ्योरी, बिग 5 पर्सनैलिटी डायमेंशंस थ्योरी। ओके। सो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे रिलेशनशिप डायनेमिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में। जी सर। थोड़ा आपको हेल्प होगा इसमें। तो उनको ये बोल दीजिएगा कि सर मैंने तो एज यू नो आउट ऑफ हॉबी मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट हाँ मैंने ये थ्योरी में मैंने मुझे लगा कि शायद ये ऐसा होता है, ये होता है, आई एम स्टिल, यू नो, इलैबोरेट, आई एम स्टिल इनटू इट, मैं इसको बारे में और स्टडी कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, साइको सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें ये सब चीजें दी हुई हैं काफी हद तक, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद में फिर अगर आपको लगता है आपको टाइम मिलेगा, टाइम तो मिल जाएगा आपको, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना उसके ऊपर अपने आप से, है ना। तो मैं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको वहां पर लिंक शेयर कर दूंगा पीपीटी का। 9811 21 0379
0379 राहुल सर। हाँ यस, राहुल कुमार, यस ओके। ठीक है। इस फील्ड्स में इंटरेस्ट वाले लोग बड़े कम ही मिलते हैं, तो हम तो कहेंगे किस्मत से ही आपसे मुलाकात हो गई। यस मे बी। हाँ देखिए, इसमें अगर आपके इंटरव्यू में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठता है तो काफी इंटरेस्ट लेगा इसमें वो, जी। सोशियोलॉजिस्ट बैठेगा तो वो भी जरूर इंटरेस्ट लेगा। हाँ। सो इस टॉपिक में वो बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ। हाँ? ये डायनासोर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है क्या? नहीं नहीं, एंथ्रोपोलॉजी तो ह्यूमंस के शुरू होने से है ना, ये तो 6.5 हाँ करोड़ साल पहले मर चुके हैं डायनासोर्स। राइट। तो इसका कोई लिंक नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी में कोई डिस्कशन नहीं होता इसका क्या? नहीं नहीं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं होता इसमें। ओके, नहीं, एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ मुझे पता ह्यूमंस के नहीं बारे था। में करते होंगे, ये तो हम्म। पैलियोंटोलॉजी का पार्ट आ जाएगा। अच्छा। जी। अब इसके बारे में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है इस अच्छा। डिसिप्लिन की। ओके। हाँ मतलब बेसिक आपसे कि क्या आपने पढ़ा, क्या आपने सीखा, जी। आप क्या लगा, मतलब आपने वो जानना चाहेंगे कि आपने क्या स्टडी की, हाँ हाँ क्या उस स्टडी का बेनिफिट हुआ आपको, या हाँ। आप कुछ हमें बताइए। तो इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं वो, क्या ओके। आप स्टडी करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, क्या है, कैसे स्टडी करते हैं, कहाँ से स्टडी करते हैं, क्या सोर्सेज है आपकी। फिर ओके। वहां से संबंधित चीजें, मान लो कोई थिंकर है, कोई बुक है, तो उसके बारे में फिर वो पूछ सकते हैं। ओके। मतलब इस स्टडी के बारे में ज्यादा पूछेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि डायनासोर के बारे में तो कोई क्या ही पूछेगा, कोई मूवी वगैरह होगी तो जुरासिक पार्क एंड ऑल, वही है, ज्यादा कुछ है नहीं। और ओके। मुझे तो इतने समझ में आ रहा है, बाकी अगर कोई और पार्टिकुलरली किसी डिसिप्लिन में आता होगा, जी। जूलॉजी वगैरह में, तो आई थिंक मुझे पता नहीं है कि जूलॉजी में आता है कि नहीं आता है ये। मतलब पैलियोंटोलॉजी में है स्टडी ऑफ फॉसिल्स है ना, जूलॉजी में भी जो जिंदा है उन्हीं की स्टडी करते हैं, तो ये अलग ओके स्टडी ऑफ फॉसिल्स है ये। अच्छा, फाइन। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा। ओके ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आप कीजिए अच्छे से। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिला है, इंटरव्यू टेलीग्राम चैनल का? शायद नहीं सर, देख लूंगा मैं एक बार, अच्छा, ईमेल में चेक कर आप लूंगा। देख लेना। हाँ वरना मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी सर। और कुछ जो पैनल्स वगैरह हैं वहां पर भी जाइएगा, एक दो बार आप जो है 1-to-1 इंटरव्यू दे दीजिएगा इन फिजिकल। हाँ आप हाँ। ऑफिस में आ जाइएगा। तो हम फैकल्टी लोग, हम तो बाहर से तो पैनल वगैरह हम बुलाते नहीं है, देखो ओके। उतना सब पूरा हम सिस्टम लगाते नहीं है, लेकिन हमारी जो खुद का एक्सपोजर, आपने मुझसे बात करके समझ ही लिया होगा ये चीज, जी कि जी। जो एक जेन्युइन चीजें हैं, जो एज एन एक्सपर्ट और जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, तो हमारी जो सारी फैकल्टी है, सब लोग इंटरव्यू अपीयर्ड हैं 2-3 बार, सब लोगों ने दिया हुआ है, और कई ओके। साल से पढ़ा भी रहे हैं सब लोग अपने अपने फील्ड में। जी तो सर। आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन शायद कोई और ना बता पाए, ओके। है ना? क्योंकि होता क्या है कि जब आप जो ये पैनल वगैरह होते हैं, ये सब प्रोफेसर होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ये सब थोड़े मूडी टाइप के लोग होते हैं, आपके अच्छा। डेफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। कहने के लिए बोलेंगे कि डेफ एनालिसिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं लेते वो अच्छा। दे आर काउंटिंग यू जस्ट लाइक ए नंबर, कि ठीक है यार, हमें तो 500 लोगों का इंटरव्यू कराना है, हमें रिजल्ट दिखाना है 100-200 लोगों का। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। तो ना तो इतना टाइम देंगे वो, ना आपके इसमें इतना डेप्थ डेप्थ में जाएंगे आपको वो। तो कहीं ना कहीं आपको एक शैलोनेस फील होगी। फिर आप मल्टीपल जगह पे जाओगे तो कंट्राडिक्शंस क्रिएट भी होती है कई बार, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आप तो कंट्राडिक्शंस भी बहुत होंगी, कि किसी ने बोला कि आप काफी कूल एंड काम हो, किसी ने बोला कि नहीं नहीं आप कूल एंड काम नहीं हो। जी तो जी। आप एक चीज और नोटिस करना, कि किसी की भी जो फीडबैक है उसको बहुत सीरियसली मत लेना, ओके अपने पर्सनालिटी को चेंजेस मत करना, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनालिटी से एक मतलब पॉजिटिव ऑरा मुझे आपके इसमें नजर आ रहा है ओके, थैंक यू। ओवरऑल। एक जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है लिसनिंग, दैट इज वेरी गुड, यू कैन लिसन ना। जी सर। बट आपका भी एक्सप्रेशन वाला पार्ट वो मैंने देखा नहीं है, तो उसके लिए कुछ इंटरव्यूज वगैरह आप शेड्यूल कर हम कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे टच में रहिएगा। कुछ टेलीग्राम चैनल पे भी काफी अच्छे सिंसियर एस्पिरेंट है हमारे, प्रीवियस ईयर्स के भी हैं जिन्होंने प्रीवियस में इंटरव्यू